Okay. Hope so my screen is visible. Clear, loud means अच्छा एकदम clear visible and there is no lag in the network like yesterday. Loud है सर. Okay. So कल हम लोग ने जो डिस्कस किया था, राइट, वी वर सीइंग दी टेक ऑफ एंड डिपार्चर क्लियरेंस, कुछ प्रोसीजर्स वगैरह देखे थे एंड डिफरेंट कंडीशंस देखे थे एंड वी आल्सो सॉ कौन से कंडीशन में हम डिपार्ट नहीं करेंगे, right? We generally saw when firefighting services is not available and when any of the firefighting service crew members, if they are busy, then also will not depart. ठीक है, ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है फायर फाइटिंग सर्विसेज या फिर कोई रनवे पे बफेलो वगैरह आ जाता है, ऐसा कोई कंडीशन हो जाता है, राइट, एट दैट टाइम ऑल्सो वी विल नॉट डिपार्ट. ठीक है, बफेलो कोई एनिमल कोई बर्ड बर्ड वगैरह आ जाती है, इन दिस कंडीशंस वी विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम दी पर्टिकुलर aerodrome. And also we saw few examples. We saw priority departure. Priority departure कौन से conditions में लिए जाते हैं. We also saw that thing also. Now we'll start with our ATC clearance. And ATC clearance, route clearance, ये हो गया था कि बाकी था? नहीं, बाकी है. Okay. So we'll start today the ATC route clearance and en route clearance. The next condition is the ATC clearance, en route clearance या फिर route clearance and en route clearance. They are totally different. ATC clearance is generally taken on the when we are departing the aircraft. मतलब जैसे ही तुमने कोई runway को depart किया, then we will take this clearance. Route clearance is taken anytime when you are flying, you are on particular route, you are on a clear route, but you want to deviate on particular route, right? You want to change your route. At that time, we will take the route clearance. And route clearance is also in between the flight zones, means from one destination to second destination you are going, and in between you need some special type of clearance here, right, in between the two destination and the source. So there we generally take the en route clearance. Okay, so what are the conditions and who gives the clearance? Let's see. So there are few points. Generally, ATC clearance is given by the tower. First of all, who gives the ATC clearance? So it is the tower. It is always given by the tower. This one. Tower is the responsible ATC which gives the ATC clearance, and everything ATC clearance, route clearance is same. Okay, whatever clearance we are saying, in every clearance, the tower clears you about the same thing. Okay, so all these three clearance are almost the same. Now, this clearance can be given by any medium. Okay, it can be by our radio frequencies. It can be by DATIS, right? Data link communication system, right? On ACRS, or it can be given on landline also, right? And it can be taken on the mobile phones also, right? Wireless communication, any other communications can be taken on any communications. If your VHF or HF communication systems are not working, then you can directly call the ATC with your mobile phone also. If you are having a mobile phone and same, if you are having the contact details of that particular ATC, you can take ATC clearance on that particular device also. So you can take ATC clearance from anywhere. Okay, and ATC or ground personals, they can give you the ATC clearance on return basis also. So it can be taken by any medium. Okay, if you depart from any controlled airspace, you need to take ATC clearance. जैसे ही हम कोई भी एरोड्रोम को डिपार्ट करेंगे, राइट, व्हेन वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम एनी एरोड्रोम, व्हेन वी आर डिपार्टेड, जैसे कल एक सिचुएशन हमने डिस्कस किया था, वी टुक द सिचुएशन टिल द डिपार्चर फ्रॉम द रनवे. तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जैसे हम लोग रनवे से डिपार्ट हो गए, लास्ट सिचुएशन हमने क्या किया था, वी स्विच्ड फ्रॉम टावर टू अप्रोच. ओके, एंड बिफोर स्विचिंग फ्रॉम टावर टू अप्रोच, वी जनरली टुक द एटीसी क्लियरेंस. ओके, विद द अप्रोच. ये चीजें हमने देखी थी. Departure clearance is also given by the ATC. At busy airports, they are separate unit called as a clearance delivery. Okay, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि क्लियरेंस के लिए ATC clearance separate ATC also,
राइट। हमारी जो नॉर्मल एटीसी है वो तो काम कर ही रही है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गिव दी क्लियरेंस। जैसे कि हमने देखा था कितने टाइप्स ऑफ एटीसी, एसएमसी, टावर, अप्रोच एंड कंट्रोल। दीज फोर एटीसीज वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस। बट एक और एटीसी है जिसे बोलते हैं क्लियरेंस डिलीवरी। क्लियरेंस डिलीवरी, ठीक है। दिस ATC service is generally for the ATC clearance only. It will provide you the ATC ठीक है, clearance delivery point of view. If we talk about only about the examination point of view, obtain ATC clearance, then we have to search for delivery frequency. अगर जो वो हमारा जो हमने रूट चार्ट देखा था, राइट, उसमें प्रीवियसली सारे व्यूअर के पास उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी रहती है। तो उसके अंदर हमें सर्च करना है कि अगर उस व्यूअर के पास क्लियरेंस डिलीवरी की भी कोई फ्रीक्वेंसी है, मेंशन्ड है, जैसे उसमें हम देखा था कि जिस जो भी सर्विसेज अवेलेबल है वो चार्ट के ऊपर मेंशन की जा रही थी पहले से। अगर उसके पास क्लियरेंस डिलीवरी है तो हमें सीधे क्लियरेंस डिलीवरी को ही कॉल करना है सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दी टावर और ग्राउंड और अप्रोच। किसी को कॉल करने के अलावा हम सीधा डिलीवरी को कॉल करेंगे फॉर एटीसी क्लियरेंस। और ये जनरली कहाँ मेंशन किया रहता है, तो ये नोट 2 में भी दिया रहेगा, ठीक है। हमें उस डिलीवरी की फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा इन उस नोट 2 में, अदर इंफॉर्मेशन में। नाउ while asking for ATC clearance, tower will not concern about your current position, ठीक है। जब हम एटीसी, हमने क्या देखा था, जब फर्स्ट कांटेक्ट कर रहे हैं तो हर बार हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर गिविंग आवर पोजीशन इन 4 Ws। द थर्ड W वाज दी फॉर दी पोजीशन, ठीक है। W1, W, राइट, whom you are calling, who are you, where are you, and what do you want. These were the 4 Ws. So in this one, if you are asking for ATC clearance, generally we skip the position। ये इसका एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में देखा था कैसे करते हैं हम जनरली। फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल्स पे लेते हैं दिल्ली ग्राउंड, दिल्ली ग्राउंड, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। वी विल नॉट से पोजीशन, वी विल सिंपली से रिक्वेस्ट दिल्ली ग्राउंड। नहीं, यहाँ गलत एटीसी को कॉल किया, वी विल कॉल दिल्ली टावर और दिल्ली अप्रोच, ठीक है। रिक्वेस्ट एटीसी क्लियरेंस, ठीक है। इस तरीके से विल नॉट, विल स्किप दिस थर्ड डब्ल्यू, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी इन दिस फॉर्मेट। एटीसी क्लियरेंस शुड बी टेकन फ्रॉम द एप्रॉन, ठीक है। जैसे हम एप्रॉन पे उसके पहले एटीसी क्लियरेंस ले लिया जाता है। एट एनी एयरपोर्ट व्हेन ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल, देन देयर वर्क इज डन बाय द टावर जनरली, ठीक है। कहीं पे ग्राउंड नहीं अवेलेबल है, ये तो मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर जो ग्राउंड नहीं अवेलेबल है तो हम सीधा टावर को कॉल करेंगे। टावर इज नॉट अवेलेबल, देन वी विल डायरेक्टली कॉल दी अप्रोच। अप्रोच नहीं अवेलेबल है तो हम सीधा कंट्रोल को कॉल करेंगे, ठीक है। अगर चारों नहीं अवेलेबल है, राइट, कंडीशन इज एक एयरपोर्ट पे जहां खड़े हो वहां पे कोई भी नहीं अवेलेबल है, तो हम जिस रूट पे भी जा रहे हैं उस रूट का नेक्स्ट एटीसी कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लाई कर रहे हैं मुंबई से और नेक्स्ट एटीसी अगर जो हमारा अहमदाबाद है, ठीक है, तो वी विल डायरेक्टली कॉल दी अहमदाबाद। मतलब हम मुंबई में है फिर भी हम अहमदाबाद को कॉल करेंगे, राइट। इफ देयर इज अ कवरेज रेंज, जनरली उसके फ्रीक्वेंसी पे हमें ट्यून करना पड़ता है। उसकी जो भी ग्राउंड स्टेशन या फिर टावर की फ्रीक्वेंसी रहेंगी उसके ऊपर हम ट्यून करेंगे अपने रेडियोस को, एंड वी विल टेक द क्लियरेंस फ्रॉम द नेक्स्ट एन रूट एटीसी। एन रूट मतलब होता है हमारे रास्ते में आने वाली एटीसी, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं सीधा, एग्जांपल से जल्दी समझ आ जाता है, तो we'll go with the examples फटाफट। Example is we'll take in a form of questions only, ठीक है। Question number 1 says obtain ATC clearance, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज ATC clearance. Now let's assume we are at Delhi VIDP, call sign is same examples we are taking for our easiness। हम लोग जैसे examples ले रहे थे पहले उसी examples पे रहेंगे, राइट। जैसे कि हम लोग दिल्ली, बार बार दिल्ली का एग्जांपल ले रहे थे तो we'll stick with that example, दिल्ली। And destination is VA Bravo Bravo. It is ICAO code, means from Delhi to Mumbai.
ठीक है, हमारा फ्लाइट ये है। सो अब एटीसी क्लियरेंस लेना है, लेट्स सी एटीसी क्लियरेंस। तो किस तरीके से हम रिक्वेस्ट करेंगे? सो इन दिस ट्रांसमिशन पार्ट विल मेक द टू सेपरेट कॉलम्स, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। इस तरीके का सेपरेट कॉलम बना लेंगे फॉर आवर इजीनेस। ओके, हरे कृष्ण करता हूँ मैं थोड़ा देर से। Sulman, am I audible? Am I the only one in the meeting? Yes. नो सर, Okay. मेरे को भी लग रहा है आप नहीं हो मेरे मीटिंग में। एक मिनट, मैं No. रिज्वाइन करता अच्छा, रिज्वाइन करो, देखो। हूँ। दिख रहा है लेकिन आपका डिस्प्ले शेयर नहीं है अभी तक। ओके, डिस्प्ले में शेयर ही नहीं किया। ओके, आई विल शेयर इट नाउ वंस अगेन। Okay, so we were basically on the ATC clearance. So सीधा सा फॉर्मेट, राइट? ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, राइट? बेसिक सा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ऑब्टेन एटीसी क्लियरेंस, उसमें हम किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे? दिल्ली कॉल साइन है विक्टर टैंगो चार्ली, पोजीशन एटीसी क्लियरेंस टू रिक्वेस्ट आएगा। So we'll write down the ATC clearance of ATC Victor Tango Charlie Delhi Tower to Bravo at flight level 320, climb to runway heading till flight level 50, turn left to intercept radial then climb to flight level 100, resume normal navigation thereafter। ठीक है, ये टोटल 21 स्टैंडर्ड प्रेसोलॉजी है। इसमें हम इस रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन इन शॉर्ट फॉर्म RNN इस तरीके से यूज करेंगे। अब ये जो एटीसी क्लियरेंस ने हमें एटीसी क्लियरेंस दिया, इसको हमें रीड बैक करना पड़ेगा। को हमें रीड बैक करना है एवरी एटीसी क्लियरेंस, एंड दिस इज मोर चैलेंजिंग बिकॉज रीड बैक में क्या होगा ना कि हम अगर इस पॉइंट को लिख नहीं रहे हैं
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर उसने जो एटीसी क्लियरेंस लिख दिया, सेम टू सेम रीड आउट करना है। अगर तुमने वो पॉइंट्स को नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, साथ साथ में, तो हो सकता है कि कोई डेटा हम भूल जाएं, राइट। जो एटीसी क्लियरेंस मिला है उसका ऑर्डर मिसमैच हो जाए, हम लोग फ्लाइट लेवल पहले बता दें उसके बाद रूट बताएं, तो सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमें क्लियरेंस मिला उसी ऑर्डर में हमें क्लियर टू ब्रावो ब्रावो ब्रावो, जैसा एटीसी ने बोला सेम टू सेम वैसे बोल देंगे। एट फ्लाइट लेवल 320 क्लाइम, यहाँ पे हम अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ हम लोग क्लाइम कर लेंगे। विल क्लाइम टू रनवे हेडिंग टिल फ्लाइट लेवल 50। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट है एटीसी का क्या था कि टर्न लेफ्ट करना है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, देन विल टर्न लेफ्ट, विल हम करेंगे, देन विल टर्न लेफ्ट रेडियल रेडियल 0 नवंबर क्लाइम टू 100 and will resume normal aviation thereafter विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। मतलब यहाँ पे हमने अपने तरफ से कॉल, इसके आगे बात नहीं करनी, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, हमें एटीसी क्लियरेंस मिल गया। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर रहेगा, कॉम्प्लाई विद एटीसी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब ये देखो, एटीसी क्लियरेंस का यही एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और जो जो क्लियरेंस लिया, हमें क्लाइम करना है, टर्न लेफ्ट करना है, वो सारी चीजों को इंडिविजुअल करना पड़ेगा, कॉम्प्लाई बोल क्लियरेंस। ठीक है, यही एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया टोटल। तो अब आ जाओ नेक्स्ट में हम किस तरीके से बोलेंगे। तो पहला सिचुएशन क्या है, हम फिर से कॉल करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। ठीक है, पहला सिचुएशन क्या था, देखो एटीसी क्लियरेंस में हम क्या देख लेते हैं, पहला क्या था, क्लियर टू ब्रावो 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 320। ठीक है, आफ्टर डिपार्चर कहाँ पे, रनवे हेडिंग टिल फ्लाइट लेवल 50। तो ये हमारा पहला, हमें ये करनी पड़ेगी जैसे ही हम डिपार्ट हो गए, डिलीट अल्फा ब्रावो चार्ली क्लाइंबिंग, इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो या फिर पूरा लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हो, एरो, या फिर लिख सकते हो, क्लाइंबिंग का दो एब्रीविएशन है, तो हम जनरली एरो वाला यूज करेंगे, राइट। विल यूज दी एरो वाला, क्लाइंबिंग एरो करके आईएनजी लिख दो, क्लाइंबिंग रनवे हेडिंग टिल, सबसे कंडीशन ये था। तो यहाँ पे एटीसी का रिप्लाई क्या आ रहा है, व्हाट इज द रिप्लाई फ्रॉम एटीसी, हमने और को कॉल किया, एटीसी ने बोला कॉन्टैक्ट दिल्ली अप्रोच ऑन 127.9। तो इसको भी रीड बैक करेंगे कैसे, विल कॉन्टैक्ट दिल्ली अप्रोच ऑन 127.9, और हमारा एक कॉल साइन बोल देंगे लास्ट में, विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, मतलब वी हैव एंडेड ट्रांसमिशन।
ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अगर एटीसी ने यहाँ पे मेंशन किया है पड़ेगा, नहीं मेंशन किया है तो वे फ्रीक्वेंसी कॉल कर सकते हैं, बट अगर मेंशन किया है तो इट इज मैंडेटरी टू यूज दैट फ्रीक्वेंसी, याद रखना अगर जो है। तो नेक्स्ट हम कैसे अप्रोच को कॉल करेंगे, दिल्ली अप्रोच ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या था, अब देखो यहाँ पे पहला कंडीशन में हमने 50 तक क्रॉस किया था। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें इस चीज को बोलेंगे अप्रोच को। लेवल बता रहे थे ना, वहां से आपकी आवाज कट रही थी। ओके ओके ओके, सो दिस वाज द ट्रांसमिशन वी आर गोइंग टू जनरली फॉलो। फिर से देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। एक बोला, दिल्ली टावर विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली रिक्वेस्ट एडीसी क्लियरेंस, एडीसी विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली दिल्ली टावर क्लियर टू ब्रावो। यहाँ पे मुंबई का ऐसे बोल सकता है मुंबई। देखो अब यहाँ पे मैं ब्रावो 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 डायरेक्टली फोनेटिक्स का यूज कर रहा हूँ, याद रखना। मैं ट्रांसमिट करते समय भी फोनेटिक्स का यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आवर फ्लाइट इज आईएफआर। अगर ये आईएफआर फ्लाइट नहीं होता तो मैं यहाँ ब्रावो ब्रावो की जगह मुंबई लिखता। ठीक है, अगर इट इज अ वीएफआर फ्लाइट तो हम मुंबई लिखेंगे, बट बिकॉज इट इज एन आईएफआर फ्लाइट वी आर राइटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इट एज ए ब्रावो ब्रावो ब्रावो। ठीक है, वीओआर का कोड ट्रांसमिट कर रहा है फोनेटिक्स में। ठीक है, तो ब्रावो 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 एट फ्लाइट लेवल 320 आफ्टर डिपार्चर क्लाइम टू रनवे हेडिंग टिल फ्लाइट लेवल 50 हुआ, देन टर्न लेफ्ट टू इंटरसेप्ट रेडियल 180, ये दो हुआ, देन क्लाइम टू फ्लाइट लेवल 100। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमें फॉलो करनी है, देन रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन दे रहा। तो हम सीधी सी बात है, हम फिर से कॉल करेंगे उसे जो भी हमें दिया गया है। तो हम रीडबैक कैसे करेंगे, यहाँ से क्लियर टू ब्रावो 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 एट फ्लाइट लेवल 320 आफ्टर डिपार्चर विल क्लाइम टू रनवे टिल फ्लाइट लेवल 50, देन विल वर्ड यूज करना है, यहाँ पे विल बहुत जरूरी है। विल टर्न लेफ्ट टू इंटरसेप्ट, देन विल क्लाइम टू resume normal navigation thereafter। टोटल 4 कंडीशन है, 1 2 3 एंड दिस इज। तो हमें 4 बार क्लियरेंस लेना है हर बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, दिल्ली टावर विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, पहला कंडीशन ये था क्लाइंबिंग लेवल 50, पहला कंडीशन ये हो गया। वहां से क्या रिप्लाई आया, कॉन्टेक्ट दिल्ली अप्रोच ऑन 7। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने क्या बताया कि अगर जो फ्रीक्वेंसी एटीसी मेंशन कर रहा है तो वी नीड टू यूज दिस फ्रीक्वेंसी इन आवर ट्रांसमिशन आल्सो। विल कॉन्टेक्ट दिल्ली अप्रोच ऑन 127 विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपने ट्रांसमिशन को एंड कर दिया, वी एंडेड अवर ट्रांसमिशन विद टावर। अब हम किसको कांटेक्ट करेंगे, अप्रोच को। दिल्ली टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ऑन 127 डेसिमल लाइनर एट फ्लाइट लेवल 50, बिकॉज प्रीवियसली हम लोग फ्लाइट लेवल पे चले गए थे। दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो तुम अभी भी जा रहे हो या फिर चले गए हो, तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर एट फ्लाइट लेवल 50 ऑलरेडी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टर्निंग लेफ्ट, राइट, टीएल लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, बट हम इसको बोलेंगे कैसे, टर्निंग लेफ्ट टू इंटरसेप्ट रेडियल 180 डेल्टा पापा नवंबर, इस तरीके से बोलेंगे। यहां से एटीसी का रिप्लाई आएगा रॉजर। ठीक है, अब दूसरा कॉल करेंगे, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली इंटरसेप्टेड। थर्ड कंडीशन में क्या है, हम पोजीशन कहाँ पे, तो इंटरसेप्टेड रेडियल 180 डेल्टा पापा नवंबर। अब हमारा चौथा कंडीशन क्या था, यहाँ पे देखेंगे चौथा क्लियरेंस क्या था, जैसे हम इंटरसेप्ट हो जाएंगे
उसके बाद हमें क्या करना है, फ्लाइट लेवल 100 पे जाना है सीधा। तो हम क्लाइंबिंग टू फ्लाइट लेवल 00 will resume normal navigation thereafter। ठीक है, यहाँ भी एटीसी का रिप्लाई आया, रॉजर। ठीक है, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो यहाँ पे बोल देता रॉजर के बदले, अगर जो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता। बट रॉजर बोला उसने, तो दैट मीन्स एटीसी इज स्टिल एक्सपेक्टिंग सम आंसर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे से ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट क्या ट्रांसमिट, हम इस पे जा रहे हैं और उसके बाद नॉर्मल नेविगेशन करेंगे। तो इसके आगे का इस तरीके से बनेगा, दिल्ली अप्रोच। हाँ, अगर क्लाइंबिंग हो तो जनरली हम क्या करेंगे, अप्रोच को कॉल करेंगे। बट फ्लाइट लेवल 100 पे हमें वो चार्ट देखना पड़ेगा कि फ्लाइट लेवल 100 पे जनरली क्या होता है कि कंट्रोल के रेंज में आ जाते हैं हम लोग। तो विल डायरेक्टली कॉल दिल्ली कंट्रोल, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली एट फ्लाइट लेवल 100 will resume normal navigation thereafter। ठीक है, यहाँ पे एटीसी बोलेगा गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसी केस में उसने हमें कहाँ तक दिया था, रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन। तो हमें उसको ब्रेक करके 1 2 3 4 पार्ट में हमने उसको ब्रेक किया। हमने 4 टाइम्स उसको ट्रांसमिट किया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जहां पे हमें एटीसी बोल देता है कि कॉम्प्लाई विद द एटीसी क्लियरेंस। यहीं पे मार्क्स कटता है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग वाला मार्क्स होता है, क्वेश्चन होते हैं इसमें। ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें प्रीवियस ट्रांसमिशन को याद रखना पड़ता है, प्रीवियसली हमें क्या क्लियर किया गया था, और उस मतलब उसको सीरियल वाइज हमें ट्रांसमिट करना पड़ता है इंडिविजुअली। ठीक है, इसलिए इसमें चीजें याद रखनी पड़ती है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन इसी तरीके का। विल टेक वन मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज obtain ATC clearance and comply with the instruction। ठीक है, obtain ATC clearance and comply with the instruction। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कॉल साइन चेंज करते हैं, विल चेंज द कॉल साइन। लेट्स द क्वेश्चन है तो इसमें लेट्स एज्यूम वी आर एट मुंबई एयरपोर्ट। लोकेशन भी चेंज कर दिया हमने। ठीक है, लेट्स एज्यूम वी आर एट मुंबई UK 129er। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज फॉर एक ऐसी एयरलाइन है जिसे बोलते हैं विस्तारा, इट इज फॉर विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है, एयरलाइंस का हम लोग यूज करेंगे। सो चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें एटीसी क्लियरेंस लेना है। सेम फॉर किस तरीके से, यहाँ पे TX और RX का हम TX और RX इसमें सीधे से बोलना है। जैसे हम लोग अभी मुंबई पे हैं, तो मुंबई में क्या लिखा था, एटीसी क्लियरेंस जनरली वी टेक इट फ्रॉम द टावर। तो हम करेंगे मुंबई टावर इज दी व्यूआर कोड। तो हम लिखेंगे ब्राउ ब्राउ ब्राउ, बट बोलेंगे कैसे, मुंबई। 129er रिक्वेस्ट ATC क्लियरेंस। दिस इज फर्स्ट ट्रांसमिशन वी हैव मेड। तो अब एटीसी क्लियरेंस जो आएगा उसको क्या है, विस्तारा
129er, Mumbai Tower, here to at flight level 350, ठीक है, after departure, climb till flight level 70, then turn right to intercept radial 0, then climb to flight level 50, resume normal navigation thereafter। ठीक है, ये हमें क्लियर किया। सेम टू सेम प्रीवियस एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें हम सेम टू सेम बोलेंगे। पहले हम क्या करें, कैसे रीड करेंगे? सो क्लियर टू डेल्टा at flight level 35 after departure will climb to runway heading level 70। फिर उसके आगे क्लियरेंस क्या था? देन will turn right to intercept radial 018 bravo 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 will 15 and resume normal navigation thereafter। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वो क्या रिप्लाई कर देगा? मुंबई टावर या फिर रॉजर, डिपेंड्स। नेक्स्ट ट्रांसमिशन में हम कैसे कॉल करेंगे? अगर टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया तो ओके, नहीं बोला तो हम इसको कंप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी जनरली निकल जाता है कॉम्प्लेक्शन। मुंबई टावर, विस्तारा 29er, तो वी आर इन अ क्लाइंबिंग फेज, क्लाइंबिंग रनवे हेडिंग टिल फ्लाइट लेवल 0। ठीक है, यहाँ पे एटीसी का रिप्लाई क्या आएगा? सेम प्रीवियस की तरह, विस्तारा 129er, मुंबई विस्तारा 129er, कॉन्टैक्ट अप्रोच ऑन, तो हम इसको रीड आउट करेंगे। विल कॉन्टैक्ट, मतलब हम उसने जो भी बोला कि ये करो, यस, हम सीधे आगे विल लगाएंगे। विल कॉन्टैक्ट मुंबई अप्रोच ऑन वन लाइन, कॉल साइन लिख देंगे, विस्तारा 129er। जिस वी हैव एंडेड आवर पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन, बोल देगा रॉजर। अप्रोच को कॉल करेंगे, मुंबई अप्रोच विस्तारा 129er 12 लाइनर एट
flight level 70 to intercept radial 018 ब्रावो ब्रावो एटीसी का रिप्लाई रॉजर। नेक्स्ट ट्रांसमिशन हम फिर से करेंगे जब तक हमें गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मिल जाता, फिर से करेंगे। मुंबई अप्रोच विस्तारा 1 to 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके बाद क्या तो इन था रेडियल 8 इंटरसेप्टेड रेडियल 0 क्या था हमारा, हमें 150 पे जाना था सीधा। तो क्लाइंबिंग टू फ्लाइट लेवल, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, सीधा बोल दो क्लाइंबिंग या फिर विल क्लाइंब टू फ्लाइट लेवल 150 देन विल रिज्यूम नेविगेशन देयर आफ्टर। यहाँ पे एटीसी बोल देगी रॉजर। ठीक है, अब हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन ने हमने ये बोल दिया था, तो नेक्स्ट हम हमारा क्या वाला करेंगे इसका, मुंबई कंट्रोल का विस्तारा एट फ्लाइट 150 will resume normal navigation thereafter। ठीक है, यहाँ पे एटीसी बोलेगा गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन लेंगे, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस वन। देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एटीसी क्लियरेंस के ऊपर जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत मार्क्स कट करते हैं, बहुत मार्क्स करते हैं, कट करते हैं। तो इसीलिए हम जो एटीसी ने हमें क्लियर किया है ना, उसको मतलब जितना क्लियरेंस हमें मिला उसमें, मतलब एटीसी का जो भी क्लियरेंस है विल ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। जैसे अभी तक जितने क्लियरेंस मिले वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। तो वैसे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अब तुम दो पार्ट्स को एक साथ मर्ज कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल एक एक पार्ट को ट्रांसमिट करोगे हर बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसमिशन लंबा हो जाता है, इट बिकम्स लॉन्गर, क्योंकि एटीसी हो सकता है यहाँ पे रॉजर बोल दिया है, राइट, हमने ऐसा एज्यूम किया रॉजर बोल दिया। ठीक है, रॉजर बोल पार्ट उसने खत्म कर दिया, बट अगर क्लियर फ्लाइट लेवल, जैसे हम लोग 70 पे जा रहे हैं तो उसने बोल दिया 50 पे जाओ, उसके ऊपर 70 पे ट्रैफिक है, या फिर 70 के ऊपर चले जाओ, 110 पे चले जाओ, तो वो सारे कंडीशन में जो कम्युनिकेशन है वो और लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बोलिए नहीं 70 पे मत जाओ, 110 पे जाओ, तो सीधे बोलेंगे क्लाइंबिंग टू फ्लाइट लेवल करना पड़ता हमें, यस, लिविंग फ्लाइट लेवल 70 फॉर फ्लाइट ये होता है, ये नहीं करते हम लोग, इसके बाद बोलते हैं लिविंग फ्लाइट लेवल 7 विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, इस तरीके से हम ट्रांसमिशन को एंड करते हैं। और जाते हैं तो वहां पे फिर से कॉल करते हैं एट फ्लाइट लेवल 110, और नेक्स्ट ट्रांसमिशन करते हैं हम लोग इस तरीके से। सो डिपेंड्स ऑन द एटीसी और एग्जामिनर कि वो एग्जाम इस क्वेश्चन को कितना लंबा खींचना चाहता है, बिकॉज दिस बिकम्स अ लाइव सिचुएशन। इसमें जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा रिप्लाई में एटीसी घुमा सकता है वो घुमाएगा तुम्हें। क्वेश्चन इज, दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हिच आर बीन जनरली आस्क्ड एवरी टाइम। सो क्वेश्चन है, ड्यू टू लैंडलाइन फेलियर वडोदरा टावर, वडोदरा टावर
is not able to but but clear you to climb to the highest limit highest limit of its highest limit of it take necessary action या कुछ भी हो गया तो बट ये क्लियरेंस उसने रिटर्न में दे दिया हो सकता है आईटी से भेज दिया होगा नहीं चल रहा है right? या फिर वीएचएफ चैनल नहीं चल रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो लाइव एटीसी क्लियरेंस नहीं दे पा रहा है बट प्रायर एटीसी क्लियरेंस उसने दे दिया है बिफोर फ्लाइट ओनली उसने बोल दिया कि ठीक है हमारा टावर नहीं चल रहा है तुम सीधा एक काम करो हमारे सबसे ऊंचाई पे मतलब उस एरोड्रोम का सबसे अपर लिमिट है राइट उस अपर लिमिट पे जाओ और वहां से सीधा मतलब क्या कर लो वहां तक तुम्हें क्लियर कर दिया अपर लिमिट तक यू आर क्लियर वहां से जाने के बाद तुम दूसरा पर्टिकुलर जो भी एटीसी है रूट एटीसी है उसको कॉल कर लो ठीक है तो इस तरीके से है तो जब यहाँ पे लैंडलाइन नहीं चल एन रूट है फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर डिपार्ट वडोदरा ले लो हमारा फॉर एग्जांपल लो एयर इंडिया 5 9er 9 हाइपोथेटिकल हो गया एयर इंडिया 5 9er 9er ये हमारा डिपार्चर एरोड्रोम है डेस्टिनेशन एरोड्रोम तो अगर वडोदरा के बाद कौन सा आएगा चार्ट पे देखोगे इस तरीके से तो वडोदरा के बाद लेट्स अज्यूम अहमदाबाद आ गए उस रूट पे या फिर वडोदरा का वो अहमदाबाद के अंदर में आता है तो हम सीधा अहमदाबाद को कॉल करेंगे ठीक है किसको कॉल करेंगे क्योंकि वडोदरा का नहीं चल रहा है तो हम सीधा अहमदाबाद को कॉल करेंगे नेक्स्ट एन रूट एटीसी है हमारे रास्ते में आने वाला दूसरा एटीसी कौन सा है वडोदरा के बाद दैट इज अहमदाबाद उसको कॉल करेंगे अहमदाबाद अप्रोच हमारा कॉल साइन क्या है एयर इंडिया 5 ऑन 119-6 हमारा पोजीशन क्या है सो वी ओवरहेड क्यूबेक क्यूबेक जुलू मतलब क्यूबेक जुलू ये वडोदरा का क्यूआर कोड है तो ओवरहेड क्यूबेक फ्लाइट लेवल कितने पे हो 70 क्यूबेक क्यूबेक अनएबल मींस इसको हम बोलेंगे वडोदरा वडोदरा अनएबल प्रोवाइड एटीसी क्लियरेंस टू लैंडलाइन करें हम ट्रांसमिट करेंगे लैंडलाइन फेलियर क्या बोलेंगे डिपार्टेड वडोदरा कब डिपार्ट हो गए थे हम लोग 1000 लेट्स अज्यूम दिस इज द टाइम लोग 10 बजे वहां से निकले थे डेस्टिनेशन हमारा क्या है तो दिल्ली हमारा रूट क्या है हम उसको रूट रूट अल्फा 474 ये रूट यूज करने वाले हैं जनरली क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा फ्लाइट लेवल 50 ठीक है हमने इस लास्ट में क्या बोल दिया एटीसी क्लियरेंस तुम दे दो हमें हम वी आर टेस्टिंग अहमदाबाद अप्रोच टू गिव अस दी एटीसी समझे किस तरीके का नहीं चल रहा है वडोदरा
का जो भी कंट्रोल है टावर है दैट इज नॉट वर्किंग। तो हमारा नेक्स्ट जो कंट्रोल है दैट इज दी अहमदाबाद। वी हैव कॉल्ड दी अहमदाबाद। हमने उसको सारा सिचुएशन बताया कि मतलब वडोदरा ने हमको कहाँ कहाँ तक क्लियर किया था कि उसके अपर लिमिट तक जा सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन क्लियरेंस दे दिया, वहां तक जाओ और वहां से नेक्स्ट एन रूट एटीसी को कॉल कर लो। तो हम लोग ने वही किया, वी क्लाइम्ड एट फ्लाइट लेवल 70। और उसके बाद वहां पे हमने एटीसी को पूरा बताया, देखो अहमदाबाद अप्रोच एयर इंडिया 5999 ऑन 119.6 पोजीशन ओवरहेड क्यूबेक क्यूबेक जुलू। उसके बाद क्या बताया हमने, फ्लाइट लेवल 70, हम लोग फ्लाइट लेवल 70 पे है। फिर उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, क्यों हम लोग इस लेवल पे है और क्यों अहमदाबाद को कॉल कर रहे हैं वडोदरा में होने के बाद। तो हमको उसको रीजन बताना है। रीजन में क्या बोलेंगे, वडोदरा अनएबल टू प्रोवाइड एटीसी क्लियरेंस, उसने हमें एटीसी क्लियरेंस नहीं दिया। क्यों, तो ड्यू लैंडलाइन फेलियर। अब उसके बाद हमें बताना है कि तुम वडोदरा से कब उड़ गए थे। तो डिपार्टेड वडोदरा एट 1000, डेस्टिनेशन दिल्ली। दिल्ली बोल सकते हो या फिर डेल्टा पापा नवंबर बोलोगे, देखो यहाँ पे कंडीशन है। अगर व्यूअर फ्लाइट है तो दिल्ली बोलोगे, बट अगर आईएफआर फ्लाइट है तो हम वहां पे डेस्टिनेशन में डेल्टा पापा नवंबर बोलेंगे, दिल्ली नहीं बोलेंगे। ठीक है, व्यूअर का कोड बोलेंगे, डेस्टिनेशन डेल्टा पापा नवंबर, रूट अल्फा 474, कौन से रूट से जा रहे हो, अल्फा 474, फ्लाइट लेवल 250, रिक्वेस्ट एटीसी क्लियरेंस, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे अहमदाबाद के ऊपर है कि वो तुम्हें डायरेक्टली क्लियर कर देगा, यस जो भी है एटीसी क्लियरेंस दे देगा, या फिर वो ऐसे बोल सकता है स्टैंड बाय। क्योंकि तुमने अचानक से कॉल किया ना, इसके जुरिडिक्शन में तुम नहीं हो, वो वेरीफाई करेगा। तो करने हैं स्टैंडिंग बाय, हमारा कॉल साइन जो भी है एयर इंडिया 5999। ठीक है, फिर लगाएगा, आप सामने से वो कॉल करेगा क्योंकि तुम्हें स्टैंड बाय भी रखा है। एयर इंडिया 599 अहमदाबाद क्लियर टू डेल्टा पापा नवंबर फ्लाइट लेवल 250। इस को भी बताएंगे कि हाँ हमको अहमदाबाद ने क्लियर कर दिया है, अब हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी तुम वडोदरा में ही हो, अहमदाबाद में नहीं हो। तुमने डायरेक्ट कॉल किसको किया है, अहमदाबाद को किया है। तो इस सिचुएशन को ध्यान से समझो क्या हो रहा है लाइव, अगर जो दिमाग में समझोगे पिक्चराइज करोगे तब समझ पाओगे। तो तुम वडोदरा में ही वडोदरा के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, तुम्हें अहमदाबाद ने क्लियर कर लिया, तो तुम वडोदरा को भी कॉल करके बताओगे कि हमें क्लियरेंस मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से पहले यहाँ क्या क्लियरेंस मिला है, क्लियर टू पापा नवंबर फ्लाइट लेवल 250, और ये रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट टू चेंज ओवर क्यूबेक क्यूबेक जुलू टावर एयर इंडिया 5999। राइट, हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन कर दिया। तो यहाँ से आ गया रॉजर, क्या बोल दिया रॉजर। ठीक है, नेक्स्ट हम किसको कॉल करेंगे, विल सिंपली कॉल वडोदरा क्यूबेक या फिर टावर एयर इंडिया 599 122.35। कहाँ पे हो पोजीशन, तो अभी भी हम उधर पर हैं। तो ओवरहेड क्यूबेक टू फ्लाइट लेवल 70। अब हम क्या बताएंगे, तो हमारा कांटेक्ट अच्छे से हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कांटेक्ट अहमदाबाद अप्रोच। ठीक है, और उसके बाद क्या मिला हमें, टू डेल्टा नंबर एट फ्लाइट लेवल 25, इतना बता सी बात है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। गो टू क्वेश्चन।
दिस वाज द ओवरऑल डिपार्चर प्रोसेसेस। इस तरीके से हम ये देखो एटीसी चीज को और लंबा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो नहीं खींचे बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस question को और लंबा लेके जाया जा सकता है। जैसे प्रीवियस वाले में देखो ये लंबा लेके गया था खींच के, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये स्टैंड बाय के बाद और भी लंबा चौड़ा क्लियरेंस दे सकता है। यहाँ पे क्लियरेंस यूज है क्लियर टू नवंबर, इसके अंदर टर्न लेफ्ट या फिर टर्न राइट, क्लाइम टू फ्लाइट लेवल 250, डिसेंड टू उस करो, चार है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर दो ही दिया है, ठीक है। क्लियर टू और लंबा खींचा जा सकता है इफ दे वांट, ठीक है। जो भी आया को कन्वे कर देंगे। दैट्स द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक इट्स 10 o'clock, बाकी कल डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यू सिचुएशन आ गया है। न्यू ओके सर। कल हम SID पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर, ठीक है। चलो आज के लिए बाय। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट।